عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 9th کلاس کے اردو کا ٹاپک جو ہم آج پڑھیں گے وہ ہے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری 1896 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1982 عیسوی میں انہوں نے انتقال کیا۔ تو چلو ہم شروع کریں گے۔ فراق گورکھپوری کا شمار اردو کے ممتاز ترین غزل گو شاعروں میں کیا جاتا ہے۔ ممتاز کا معنی ہے نمایاں یا منفرد۔ تو فراق گورکھپوری کا شمار جو ہے وہ نمایاں ترین جو غزل گو شعراء ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا اصلی نام رگھوپتی سہائے تھا۔ اصلی نام ان کا کیا تھا؟ رگھوپتی سہائے۔ 1896 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے، یعنی 1896 میں ان کی ولادت ہوئی گورکھپور میں۔ اس زمانے کے عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں شعر و شاعری کا چرچا تھا۔ چرچا ہو گیا تذکرہ، ذکر۔ تو اس زمانے کا جو عام ماحول تھا، یعنی عام ماحول کی طرح ان کے گھر میں کیا تھا؟ شعر و شاعری کا ذکر ہو رہا تھا، چرچا ہو رہا تھا، تذکرہ ہو رہا تھا۔ چنانچہ بچپن ہی سے شعر گوئی کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کی وجہ سے چھوٹی ہی عمر میں اس کو شعر کہنے کا شوق جو ہے وہ پیدا ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 13 برس کی عمر سے شعر کہنے لگے تھے۔ کیا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 13 برس کی عمر سے ہی شعر کہنے شروع کیے۔ انہوں نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی۔ اردو اور فارسی کے علاوہ انگریزی میں بھی اعلیٰ دستگاہ بہم پہنچائی۔ دستگاہ کا معنی ہے مہارت، استطاعت۔ تو انہوں نے تعلیم الہ آباد میں حاصل کی۔ اردو زبان اور فارسی زبان کے علاوہ انہوں نے انگریزی زبان میں بھی بہت مہارت حاصل کی۔ بعد میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے، جو سیاسی پارٹی ہے انڈیا کی، خاص کر پرانی سیاسی پارٹی انڈین نیشنل کانگریس، اس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ جیل بھی گئے، جس کی وجہ سے انگریز اس سے ناراض ہوئے اور انگریزوں نے اس کو جیل میں بھر دیا۔ کچھ عرصہ بعد انگریزی میں MA کیا اور الہ آباد یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد ہو گئے اور یہیں سے 1959 عیسوی میں ریٹائر ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کے بعد کچھ عرصے بعد انہوں نے، یعنی جب جیل سے باہر آ گئے تو انہوں نے انگریزی میں MA کیا۔ MA کا فل فارم ہے ماسٹر آف آرٹس، پوسٹ گریجویشن جس کو ہم بولتے ہیں، اور الہ آباد یونیورسٹی میں پھر آپ انگریزی کے استاد ہو گئے اور پھر یہیں سے وہ 1959 عیسوی میں ریٹائر یعنی سبکدوش ہوئے۔ فراق گورکھپوری کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شب نسمتان اور گل نغمہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ بہرحال ان کے جو شاعری کے کئی مجموعے شائع ہوئے، ان میں یہ چند ہیں: روح کائنات، رمز و کنایات، غزلستان، شب نسمتان اور گل نغمہ۔ ان کی رباعیوں کا مجموعہ روپ بھی بہت مشہور ہے۔ بہرحال ان کا ایک الگ شعری مجموعہ ہے رباعیوں پر جس کا نام ہے روپ، یہ بھی بہت مشہور ہوا۔ اردو میں تاثراتی تنقید کے علمبرداروں میں بھی فراق کا نام لیا جاتا ہے۔ علمبردار ہم بولتے ہیں کہ جو کسی بھی کام میں پیش ہوں، آگے ہوں۔ بہرحال تاثراتی تنقید، جس طرح اردو میں مختلف تنقید کی قسمیں ہیں، تو تاثراتی تنقید بھی ایک قسم ہے تنقید کی۔ بہرحال ان کے علمبرداروں میں، ان کے پیش رو میں فراق کا نام بھی لیا جاتا ہے۔
उनके तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ अंदाज़े और उनकी किताब उर्दू की इश्किया शायरी तासुराती तनकीद की अहम मिसालें हैं। बहरहाल तनकीद पर उनकी ये किताबें हैं, एक है अंदाज़े और उर्दू की इश्किया शायरी, ये तासुराती तनकीद की बेहतरीन मिसालें हैं। फिराक गोरखपुरी को 1960 ईस्वी में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। साहित्य अकादमी अवार्ड जो है ये एक अदबी अवार्ड होता है। ये एजाज़ अदब की मुख्तलिफ असनाफ, चाहे वो शायरी हो, नावल हो, अफसाने हो, तनकीद हो, इन मज़ामीन पर हर साल जो बेहतरीन तसनीफ़ लिखता है, बेहतरीन कोई किताब लिखता है इन मौज़ूआत पर, तो उसको ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद 1968 ईस्वी में उन्हें पद्म भूषण का खिताब मिला और 1969 ईस्वी में मुल्क का सबसे बड़ा अदबी एजाज़ ज्ञानपीठ अता किया गया। तो इसके बाद उनको पद्म भूषण ये भी है भारत का जो तीसरा बड़ा शहरी अवार्ड जो है ये है पद्म भूषण, ये भी उससे मिला, यानी इसका खिताब भी मिला। 1969 ईस्वी में जो सबसे बड़ा अदबी एजाज़ जो है, ये हिंदुस्तान की तरफ से जो सबसे बड़ा अदबी इनाम है ज्ञानपीठ, ये भी उससे अता किया गया। इंतकाल से चंद माह पहले 1982 ईस्वी में उनको मोदी गालिब इनाम पेश किया गया। इसके अलावा उसको एक और इनाम मिला है मोदी गालिब, ये इनाम भी उससे मिला है। फिराक गोरखपुरी ने गज़लें भी कही हैं और नज़में भी। इन्हें फिराक ने शायरी में गज़लें भी कहीं और नज़में भी, लेकिन बुनियादी तौर पर वो गज़ल के शायर हैं। लेकिन असल में वो किसके शायर हैं? गज़ल के। उनकी शायरी में तगज़्ज़ुल की ऐसी लताफत और दिलकशी पाई जाती है जो उस अहद के दूसरे शोरा के यहाँ नहीं मिलती। इन्हें उनकी शायरी में तगज़्ज़ुल हो गया आशिकाना मज़ामीन बयान करना। इन्हें उनकी शायरी में चूँकि हमें अश्किया मज़ामीन मिलते हैं और उसकी ऐसी लताफत हो गया खूबसूरती, नफासत, दिलकशी हो गया दिल को मोह लेने वाली, दिल को लुभाने वाली। बहरहाल ये कशिश पाई जाती है उनके आशिकाना मज़ामीन में जो उस दौर के अहद हो गया दौर के दूसरे शोरा में नहीं मिलती है। हिंदुस्तानी लहजा उर्दू शायरी में पहले भी था। फिराक का कारनामा यह है कि उन्होंने खुदाए सखन मीर तकी मीर की शायरी रवायत की बाज़याब्तगी और सदियों की तहजीबी रूह को नया तख्लीकी इजहार दिया और उससे आज के इंसान के दिल की धड़कनों से हम आहंग कर दिया। लहजा हम बोलते हैं एहसासात का इजहार, या इसी तरीके से हम अल्फाज की अदायगी को भी लहजा बोलते हैं। खुदाए सकन हम बोलते हैं, यह असल में मीर तकी मीर का लक़ब है। यह ऐसे शायर के लिए इस्तेमाल होता है जो फ़न शायरी में बाकमाल, यकता और अपने दौर का सबसे बड़ा उस्ताद माना जाता है। शायरी रवायत हम बोलते हैं वो मुसलसल और तारीखी विरसा है जो किसी भी ज़बान के शोरा को अपने पेशराओं यानी अपने पिछले शायरों से मिलता है, उसको हम बोलते हैं शायरी रवायत। बाज़याब्त हो गया खोज, और यहाँ पर हम आहंग हम बोलते हैं तवाज़ुन या यकसां, इसको हम बोलते हैं हम आहंग। बहरहाल हिंदुस्तान के लोगों के जज्बात का इजहार जो है वो पहले भी उर्दू शायरी में हमें मिलता था। लेकिन फिराक का कारनामा क्या है? उनका कारनामा यह है कि उन्होंने मीर तकी मीर की जो शायरी रवायत है
इन्हें जो हम बोलेंगे कि अब किस्से पारी ना होती जा रही थी, उसकी बाज़याफ्तगी ने इसको खोज किया, तलाश की, और जो सदियों की तहजीबी रूह है, इन्हें सैकड़ों साल की जो तहजीबी रूह है, इसको उन्होंने नया तख्लीकी इजहार दिया और आज के इंसान के दिल की धड़कनों से उसको मुताबिकत की। आज के दौर के इंसान की जो दिल की धड़कनें हैं उससे उन्होंने यकसा कर दिया, मुताबिकत कर दी, तवाज़ुन कर दिया। एक तरफ वो अंग्रेज़ी के रोमानी शायरों, वर्ड्सवर्थ, शैली, कीट्स वगैरह से मुतासिर थे, तो दूसरी तरफ संस्कृत शायरी की क्लास की रिवायत का भी उनके नज़रिए जमाल पर गहरा असर था। बहरहाल चूँकि आप अंग्रेज़ी के उस्ताद भी रहे हैं, इसलिए अंग्रेज़ी के जो रोमानी इश्किया शायर जो हैं, चाहे वो वर्ड्सवर्थ हो, शैली, कीट्स वगैरह, उनसे भी आप मुतासिर थे। दूसरी है कि संस्कृत शायरी की जो क्लास की रिवायत है, जो पुरानी रिवायतें हैं, उनके इसका भी उनके जो नज़रिए जमाल है, इन्हें जिसको हम बोलते हैं बातनी और ज़ाहिरी हुस्न, उस पर उनका गहरा असर था। फिरा गोरखपुरी के बुनियादी मौज़ूआत हुस्न व इश्क, इंसानी ताल्लुकात की धूप छाँव, फितरत और जमालियात हैं। बहरहाल उनकी शायरी के मौज़ूआत हुस्न व इश्क है, इंसानी ताल्लुकात की जो तलख और शीरी, इन्हें धूप छाँव हम बोलेंगे, तलख और शीरी, तलखी भी होती है इंसानी ताल्लुकात में, कभी कभी मीठापन भी होता है, फितरत और जमालियात हैं। वो जज्बात की थरथराहटों, हुस्न व जमाल की लताफतों और निशात व दर्द की हल्की गहरी कैफियतों के शायर हैं। इन्हें उनकी शायरी में हमें जज्बात की थरथराहट भी मिलती है, हुस्न व जमाल भी, इन्हें उसकी खूबसूरती भी और खुशी भी, और कभी दर्द की हल्की टेस भी उनकी शायरी में मिलती है। या इस तर्ज के वो शायर थे और उर्दू शायरी में अपनी लबो लहजे से अलग पहचाने जाते हैं। बहरहाल ये सब खुसूसियत होने की वजह से आप उर्दू शायरों में उनकी एक अलग ही पहचान है।